Have you seen today's GS paper? Yes. Paper 1. So do you think on the basis of political science, you can do some questions? Fine. I feel that around 115 marks out of 250 can be covered on the basis of political science. For example, the significance of Gandhian movements lay in the masses they mobilized. Fine. So, what is the significance? अगर इसका आंसर होता तो क्या लिखते आप? The significance of, ये भी आपके सिलेबस का ही है. We have strategies of national movement, जिसमें गांधीयन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. An entire Bipin Chandra deals with that. So the significance of Gandhian movement lay in the masses they mobilized. अगर ये आंसर होता तो क्या लिखते आप? हना एरेंट क्यों लिखते हैं? रिलेट छोड़ो. सिग्निफिकेंस, गांधीयन मूवमेंट की खास बात क्या है? एबिलिटी टू मोबिलाइज मासेस. ठीक है. इस बात को आपको इल्यूसिडेट करना है, इस बात को शो करना है. तो ये आंसर कहां से स्टार्ट होता? आइडियल तरीका क्या है इसका आंसर लिखने का? फीचर्स ऑफ गांधीयन. व्हाट वेयर द फीचर्स ऑफ? पहला फर्स्ट लाइन फीचर्स ऑफ गांधीयन मूवमेंट से स्टार्ट कर देते. तो वो जो पूछ रहा है काम का क्यों नहीं बताते? बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका. डू यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड हियर? क्या करना है इसका? ये कोई पूछ रहा है कि गांधी ने मेथड कहां से अडॉप्ट किए? हाँ, पता नहीं क्या बोलते हो तुम लोग, क्या लिखोगे? हु इज गांधी? हु इज गांधी? सो ऑब्वियस. ठीक है. द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट्स ले इन द मासेस हैव मोबिलाइज्ड. तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए था? फाइन. सबसे पहले मूवमेंट आप बताइए. मूवमेंट क्या है सबसे पहले, और विच टाइप ऑफ मूवमेंट? पहले आप कंसेप्ट पे जाइए. तो मूवमेंट इज व्हाट इज मूवमेंट? कलेक्टिव एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव मोबिलाइजेशन. ठीक है. एंड द पर्पस ऑफ मूवमेंट्स इज change the status quo. ठीक है. पहले हमेशा चाहे जीएस का भी पेपर हो तो आपके आंसर में कैसा होना चाहिए? डेप्थ होना चाहिए. क्योंकि इफ यू विल राइट लाइक एनीबडी एल्स तो यू विल नॉट गेट यूनिक या स्पेशल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे. तो सबसे पहले, do you have a capacity to understand the concept? So movement plus you should bring certain theories of movements. ठीक है. तो movements happen why? There are different theories. For example, there can be the relative deprivation theory. Fine. There can be resource mobilization theory. Movements are what? And movements sustain. So I made initially जब UPS मतलब मेंस का initial month था, that time I made a movement on video on Gen Z. So in that video you will get the theories. Fine. And then we will talk about Gandhian movement. ठीक है. उसके बाद आप गांधीयन मूवमेंट में आइए.
तो Gandhian movement, which type of movement was Gandhian movement? Essentially a political movement. ठीक है, जैसे ब्रह्म समाज मूवमेंट क्या है? सोशो रिलीजियस रिफॉर्म. तो गांधीयन मूवमेंट क्या है? हमेशा कंपैरेटिव अप्रोच पे यू शुड राइट कि गांधीयन मूवमेंट क्या था. इट इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट. बट what is the uniqueness of Gandhian movement? It was not just political, because it did have the agenda of social and economic change. This is seen in Gandhi's constructive program. Okay, and this is being described by, even if it is GS paper, you should write described by Bipin Chandra as the passive phases. Fine, and this is a active phase. Now the Gandhi has realized that without mass movement it will not be possible to throw the British out. And this understanding is based on what? Gandhi's very incisive analysis of the evolution of the movement so far. For example, till Gandhi, Indian national movement remained confined to the maximum upper middle class. So Gandhi is a master strategist. Okay, so Gandhi could formulate a strategy. So any movement has different components. For example, the agenda, strategy, approach, action points. तो गांधी involved, सबसे पहले गांधी ने क्या काम किया? गांधी has included those issues which touch the concerns of masses, starting from Kheda, starting from Champaran till the salt satyagrah. So he brought those issues into the movement. Next, he developed or he strengthened the organizational structure of the Congress at the grassroots level. Fine. So what all Gandhi has done? And again, the strategy of non-violence, because if you want to include more and more number of people, and you know the herd, fine, so everybody is not master, so they may not go for violence. So non-violence, besides the active and the passive phases. And then you should always write what is special, bring comparative perspective. So if you compare Gandhi is not the only person to lead the mass movement. Fine. So there was Gandhian example of Gandhian movement. French Revolution is also mass action. Russian Revolution is also mass action. But what is the difference? The French Revolution is spontaneous and uncontrolled. Whereas other than Quit India movement, Gandhian movements are controlled. Russian Revolution is controlled. But what differentiates is the violence and non-violence. So we all understand what is your analytical depth of the issue. Normally, whenever it's a mass movement, it will become violent. So where is the specialty of Gandhi's leadership? To ensure that by and large, the movement remains non-violent. Okay, so try to bring out not the superficial things, but your understanding. So the way he brought, and that is why Gandhi is seen as one of the one of the greatest mass leaders. Okay, so you should bring out the technical and uniqueness of this.
ओके इसका मतलब क्या है, जो आपकी हिस्ट्री भी है ना वो बिना पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री बहुत इंटरलिंक्ड है. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन somebody was asking, yes, मुझे तो लगता है पॉलिटिकल साइंस से आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर चाहें. या Ma'am, what kind of answers we have to write? Like, we have to write ordinary answers, like you have said, like we नहीं, don't have ऑर्डिनरी to. से तो आप अगले बार प्रीलिम्स ही दे सकते हो, क्योंकि सीटी कितनी है, ठीक है, कितने लोग जा रहे हैं मेंस में और फाइनल सिलेक्शन कितना है. Ma'am, but in one of the videos of yours, you were suggesting that we have to write like ordinary answers. No, we don't try to do something. Ordinary things, I never say ordinary, I say simple. Simple is not ordinary. Simple makes lot of efforts to simplify the things. Simple tells your clarity. I never tell there should not be unorganized, uncritical, unthinkable, unnecessary answer. आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए. आंसर जब आप लिख रहे हैं तो आपका कमांड दिखना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए, उस सिनेरियो से भागने का नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो सिंपल इज सिंपल ऑर्डिनरी, तो देयर इज अ डिफरेंस ना. सिंपल इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स कैन बी सिंपल लाइक मी. ओके, so I never believe myself ordinary, but I believe myself simple. Fine. So anyway, now this question: water resources are both an asset and source of conflict in South Asia. UPSC के आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ कॉमन सेंस पर आधारित है. इसमें क्या लिखते? Water resources are both an asset and a source of conflict in South Asia. Examine this statement. इसको examine करो. ठीक है, तो तुम लोग एग्जामिन थोड़ी कर पाओगे, तुम तो फ्लो में लिख दोगे, तुम लोग इस बात को प्रूफ करने लगोगे. तो एग्जामिनेशन करके क्या करना था? दिस एसेट पार इज वेरी लिमिटेड बिकॉज द कंट्रीज आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर दिस पोटेंशियल. द मैक्सिमम कोऑपरेशन इज बिटवीन इंडिया एंड भूटान. ठीक है, तो इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, तो इट्स इफ वी सी वो क्या कह रहे हैं, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करिए. इफ इट हैड बीन एसेट, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, बट वी आर नॉट एबल टू मेक इट एन एसेट. वी आर ब्रिंगिंग what is dominating here are not the real issues. Economic issues are on the back, and political and identity and those issues. That's why South Asia is the least integrated. ठीक है, अब इस आंसर को कैसे खास बना सकते थे? हाँ, कुछ ऐसी बात कहो कि दिल कहे वाह. अरे तुमको तो मैंने वैसे भी पढ़ा है, जीएस में कहाँ से पढ़ा है, क्या बताया है? विस्की इज टू ड्रिंक, वाटर इज टू फाइट. इसीलिए वाटर एसेट नहीं है कि है, नहीं हो सकता ना. पानी पे तो लड़ाई होती है. तो एग्जामिन करके ये कंक्लूजन होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए. ठीक है, पोटेंशियल तो बहुत है. अब इसके रीजंस भी बताइए. अब इसको तुम ज्योग्राफी का मानोगे कि इसको पॉल साइंस का मानोगे? मास्टर साइंस. ठीक है, कोई मतलब गवर्नेंस में ज्योग्राफी अपने आप में क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, लेकिन उसका एप्लीकेशन
तो वाटर रिसोर्सेस साउथ एशिया में, आप पहले बताइए व्हाई इट इज सो अर्जेंट दैट water resources should be seen as an asset, because still we are so much dependent on agriculture. Then we face erratic monsoon and we are fast moving towards industrialization. That also need all such things. Along with, we don't have that liberty to develop at the pace the way Western countries, because climate degradation etc. तो ये आंसर कहाँ लीड कैसे करना चाहिए? फाइनली ये क्यों है सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है, अब इस आंसर का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए था? एसेट, यस. तो हमेशा यू शुड कम टू द सोल्यूशन. तो what is the way forward? The way forward is what? Regionalization. Have efforts, revive. We need to rethink about the revival of SAARC. We have to rethink how to bring BIMSTEC back on track, because you need regional cooperation. You need a long-term vision. तो इसको हमेशा ओपन मतलब you should be solution oriented. इसमें भी क्या कुछ पढ़ने की जरूरत है, इसमें एक समझ की जरूरत है. इसके आधे से कोई और बहुत पढ़ के भी अगर समझ नहीं हुई तो वैसे ही कोई आंसर नहीं लिख पाएगा इंसान. ठीक है, तो कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन्स द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डिस्पाइट the challenges from communalism and regionalism. क्या होना चाहिए था इसका आंसर? Unity in diversity remains the defining feature of Indian society. Who says? Constitution says where? Constitution ये कौन सा प्रकाशन है? हमने वाला नहीं देखा भाई. चैट जीपीटी प्रकाशन, वेयर, कहाँ लिखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी? प्रियम्बल में लिखा हुआ है. किस देश का प्रियम्बल पढ़ रहे हो तुम लोग? यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. ये कहाँ का थॉट है? नेहरू भी कहीं के प्रोडक्ट ही होंगे. हे भगवान. यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या हमने क्लास में किसी थिंकर में पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया. अब ऐसा भी बोलो तुम. अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष का पूरा थॉट किस पर बेस्ड है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी नेहरू का अपना प्रिंसिपल है या डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मिला इन्हें? ठीक है, तो इंडियन ट्रेडिशन है, ये नियो वेदांतिज्म है. ये किसका थॉट है? विवेकानंद. ठीक है, उसके बाद कहां दिखता है? आप कुछ खास करिए ना जो बाकी लोग नहीं लिख रहे. आपके आंसर में योर फाउंडेशन शुड बी मच डीपर देन द अदर्स. तो नियो वेदांतिज्म है, विवेकानंद. उसके बाद अरबिंदो घोष. इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. हाउ डू यू गेट टू नो द डिफाइनिंग फीचर? किसी भी सोसाइटी का डिफाइनिंग फीचर कहां से पता चलता है? कल्चर कहां से पता चलता है? लोगों से पता चलता है. तुम लोग को तो कुछ भी नहीं पता है, हमें तो तुम्हें देख के कुछ नहीं पता चलता. स्क्रिप्चर से पता चलता है, किसी भी कंट्री के कल्चरल रिसोर्सेस से पता चलता है. ठीक है, तो इंडिया का डिफाइनिंग फीचर क्या है? अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारा मेन थॉट क्या है? वासुदेव कुटुंबकम. ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अ कॉस्मोपॉलिटन विजन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर.
तो इंडियन थॉट प्रोसेस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू हमारा सिंबल क्या है। हम इंडिया को जब रिप्रेजेंट करते हैं, आपने G20 समिट देखा था इंडिया वाला, किस फॉर्म में देखा था, क्या बना था वहां, कमल, ठीक है, लोटस। लोटस क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वालिटी, ठीक है, नॉट हायरार्की, ठीक है। तो ये सारा आपको अपने कल्चर के सिंबल से सब पता होने चाहिए। सब गवर्नमेंट के चीजों को जितना फॉलो करते चले जाओगे, अपने आप डिकंस्ट्रक्ट करते चले जाओगे कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। इट रिमेन्स डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म, फाइन। तो कम्युनलिज्म एज अ चैलेंज is what? Conflict among the communities based on religion. Since when do we see the beginning? Partition से, partition ही क्यों हुआ, कम्युनलिज्म के कारण ही तो हुआ। तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड तरीका जो है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट लेड द फाउंडेशन। हमने पढ़ाया क्या, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, ठीक है। और इनफैक्ट मैं तो भूल ही गई थी, तुम लोग को पढ़ाया हमने, तो वो जो मैकाउले मिनट भी हम डाल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, मतलब GS2 में। खैर छोड़ो, फिलहाल उस पर अभी इतना, इसको थोड़ा बता देते। अभी हम कहाँ गए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अभी समझ में आया कैसे बहुत ओपन एंडेड पढ़ना चाहिए, ओके। तो बहुत ज्यादा अपना बाउंड्रीज ओपन एंडेड होना चाहिए। तो एंड रीजनल challenges, we have seen regional challenges, for example in Kashmir, in Punjab, in Northeast, but still it remains. Why it remains? क्यों है, why unity in diversity, plurality remains? किसका किसका रोल है? यस, सिविलाइजेशनल इथोस का रोल है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या चीजें हैं विच प्रोवाइड द स्कोप, क्या क्या चीजें हैं, सेक्युलरिज्म है, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, सिस्टम ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप है। तो दीज आर, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोसाइटी, दे आर नॉट टू अपोजिट थिंग्स। वाई कॉन्स्टिट्यूशन? पीपल से दैट, लाइक ग्रैनविल ऑस्टिन सेज, constitution is a cornerstone of a nation, but why should we have one dimensional thinking? Why the constitution is surviving? Nation is not surviving only because of constitution. Constitution is also surviving because of our value system. तो bring something new जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व दिखने चाहिए आंसर में, उसमें आपकी सोच दिखनी चाहिए। कहीं बहुत सारे फैक्ट्स की जरूरत पड़ रही, लेकिन तुम लोग रटते बैठते हो। वन डायमेंशन, व्हाट हैपेंड? ओके ओके, ये आंसर लिख लोगे। हाउ डू यू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी? Substantiate the need for inclusive framework. What is disability? कोई थिंकर ला सकते हैं हम यहां? जॉन रॉल्स ला सकते हैं, डॉर्किन भी ला सकते हैं, नहीं? हाँ, वैसे अगर आप एक्सपैंड करें, हाउ डू यू लुक एट डिसेबिलिटी? हाँ, it's not just a mindset, it is a real thing, ठीक है। So disability is absence of capability, ठीक है, absence of ability to get same या get things, ability to get functionality,
there may be certain limitations to achieve functionality. So what is functionality? The sense of well-being. Hence, addressing the disability, the theorist of we in political philosophy, and you can always write in GS also, because अमर्त्य सेन या ये लोग पॉल साइंस वाले ही लोग पढ़ेंगे और GS में लिखने से परेशानी हो जाएगी, ऐसा सोच क्या है? वन डायमेंशनल भी नहीं है, मूर्ख वालों की सोच है ये। जिनको नहीं पता तो वो ये बताएंगे ये लिखो नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है तो यही तो आपकी सोच बता रहा है। एंड इज द क्वेश्चन ऑफ डिसेबिलिटी अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन ऑफ philosophy, political philosophy? Yes, because it is linked with question of justice. Justice is what? Fairness. What is state's virtue? Equality is a sovereign virtue. Who says? Dworkin. So what is the role of a state? To provide equal concern. A state should reflect equal concern for all. Fine. And hence we should have the concept of differentiated citizenship. Fine. So what is justice? Not science of homogenization, but art of differentiation. Who says? Michael Walzer. At least ethics में तो पढ़ते होगे। तो Michael Walzer says equality is a complex idea. अगर कोई ऐसे लिखेगा तो उसके ऊपर मार्क्स बरसने लग जाएंगे, क्योंकि उसका लेवल अलग है। कम से कम इतना लेवल तो होगा कि चाइनीज और अमेरिकन डिप्लोमेट से बात कर पाए। तो इस लेवल पे तो कुछ तो लिखो। जब आपके पास पॉल साइंस में इतना सब इंफॉर्मेशन है तो क्यों नहीं लिखते हो? वो पूछ रहे हैं आप क्या सोचते हैं, तो तुम तो सोचते ही नहीं, तो ऐसे लिखो हम कुछ नहीं सोचते, लक्ष्मीकांत में लिखा है वही जानते हैं, और वहां इसके बारे में लिखा नहीं है अदर देन डीपीएसपी, हम सोच ही नहीं सकते। यही तो है तुम्हारी सोच। तो नीड फॉर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क क्यों चाहिए? व्हाई डू यू नीड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क? डेवलपमेंट के लिए चाहिए। और क्यों चाहिए? इंक्लूसिविटी का संबंध किससे है? इक्वालिटी से। इंक्लूसिविटी का संबंध जस्टिस से है, ठीक है। तो व्हाई शुड यू रिक्वायर एन इंक्लूसिव फ्रेमवर्क? अगर कोई पूछे, मान लो इंटरव्यू में पूछ ले, व्हाई डू यू रिक्वायर एन इंक्लूसिव फ्रेमवर्क? सीधे रोल्स को बोलना है, ठीक है। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू of any social system, just like truth is a first virtue of any system of thought. तो ये तो अनक्वेश्चनेबल है। ये आप जो लॉजिक दे रहे हो वो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट लॉजिक है, दिस विल लीड टू डेवलपमेंट। बट कॉन्सिक्वेंशलिस्ट लॉजिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है? डीऑन्टोलॉजिकल। भले उससे एफिशिएंसी ना भी आए, बट रेस्पेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी। तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? डीऑन्टोलॉजिकल। तो अगर किसी ने दिमाग लगाया तो वो बहुत अच्छे आंसर लिख लेगा, लेकिन समस्या वही तो है, ठीक है कि डर है, तुम लोग पता नहीं एकदम पीरियड है तुम्हारा माइंड वन डायमेंशनल थिंकिंग से। पेन दे दो। किसी टीचर ने बता दिया जीएस वाले ये मत लिखना, तुम्हारी अकल क्या कहती, लिखना कि नहीं लिखना? ठीक है। तो ये क्या जीएस में क्या सिखाते हैं? फैक्ट भर दो। तो फैक्ट भरने से क्या होता है? उसके पीछे का स्ट्रक्चरल पैटर्न और कंसेप्ट। तुम 10 पॉइंट लिखो और एक सेंटेंस लिखो, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू, वेट किसका ज्यादा है ना? तो ये यही तो दैट अगर कोई कर पाएगा तो बहुत अच्छे से कर लेगा। Do you think digital technology promotes social empowerment? अब फिर पॉइंट्स घुमाने लगना।
है ना? इस आंसर को कैसे लिखना चाहिए? एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, inclusiveness, sense of well-being, that is the function of the state. Fine? तो technology is linked to empowerment और development linked है, ठीक है? तो क्या लिखोगे इसका आंसर? डू यू थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट सोशल एम्पावरमेंट? इतना सारा फ्रैंकफर्ट स्कूल पढ़ने के बाद अगर तुम लोगों की सोच यस और नो चल रही, इट इज, बट देर इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो. तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑल्सो creates a one-dimensional society, a mass society. नहीं करता? It can also threaten democracy. And is there a relation between democracy and development? तो ऐसा आंसर क्यों नहीं लिख पा रहे हो? याद नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा था, 25 पॉइंट लिखे, 5 ही लिख पाए वहां. मैम, याद करना क्या होता है? ये तो सोच है. सोच डेवलप करनी है एग्जाम में. बन सकता है वन डायमेंशनल सोच. पहले तुम्हारे सोच आ गया हाँ हाँ क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं, लीडर से इतना इन्फ्लुएंस हो. बट व्हाट यू रिक्वायर, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए कि नहीं? इतना सब पढ़ लिया, फ्रैंकफर्ट स्कूल, अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी. तो टेक्नोलॉजी कैन बी अ गुड सर्वेंट and a bad master. ठीक है, depends how you are handling that. हम तो विजयनगर भी लिख डालें ठीक है, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे हैं अभी. अरे नहीं नहीं, क्यों, हमारा अपना सिलेबस नहीं. अब ये बताओ, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ Indian states was driven by popular pressure from below. ठीक है, तो तुम लोग तो लिख सकते थे. अब तुमने सोचा होगा मैम क्यों इतना टाइम लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन पे वेस्ट कर रही, लक्ष्मीकांत में तो है नहीं. लेकिन क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे. तो यू शुड नो linguistic was driven by popular pressure. Was it driven by popular pressure from below? जल्दी से बोलो yes, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ना करो. हाँ, नो, इट वॉज मोर लेड बाई पॉलिटिकल. ठीक है, लुइस टिलिन का बुक है रीमैपिंग इंडिया. फ्रॉम बिलो तो कभी नहीं है. इंडिया के तो वैसे ही पॉलिटिकल कल्चर इनर्ट है. इट वॉज, तुम लोग को जब पूरा लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री आई टॉट, देन आई सेड ना इट्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम जस्टिस पार्टी टू इट्स द रोल. फैक्ट पे बात करिए ना. तो जो पढ़ाया गया है वो क्यों भूलना है? पहली बात तो जो चीज कोई बोले उससे सहमत नहीं होना है. जब आप सहमत नहीं होते हैं तभी आपको कोई और पॉइंट दिखता है. अगर सहमत होंगे तो पॉइंट नहीं दिखेगा. ओके. Model of planned economy was adopted in India to address the regional imbalances left by colonial rule. इस पे वो क्या कह रहे हैं, कमेंट करिए. तुम लोग जल्दी से लिखोगे यस. ठीक है, नहीं नहीं जल्दी लिखो, जल्दी पेपर खत्म करो. मार्क्स का क्या है, वो तो अगले साल भी ट्राई कर सकते हो. प्रायोरिटी तो टाइम है ना. समझ नहीं है तो, ताकि इट वॉज वन ऑफ द रीजन, but it was not the only reason. Fine. So obviously regional imbalance was there, poverty was there. There was also the social context around the world, welfare state, India's relations with USSR, leaders orientation. A policy is not just out of one or two factors. It's a complex interplay of the multiple factors where personality play the role, where ideology play the role, where circumstances play the role. तो उस समय इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, they were also adopting some form of planning.
it is a strong reason, but there are many other reasons. Because at that point of time, there was Swatantra Party also. There was Gandhian model also. तो हमारे पास choice थी, Gandhian model, Swatantra Party, and this. Nehru was at the helm of affairs. The Congress commitment for addressing poverty, ideological inclination of the leaders towards socialism, external factors, India's choice not to join the Western bloc. So, n number of factors. कभी कोई पॉलिसी किसी एक रीजन से होती, इसमें पढ़ना था, पढ़ के क्या हो जाता, पढ़ के अच्छा आंसर लिख लेते कि सोच के लिखोगे. सोच कैसे डेवलप होती है, उसको जब काउंटर करते हैं, क्या इसका कोई दूसरा, इसी को कहते हैं डबल रीडिंग, क्या इसका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव है, तब अपने आप से नए पर्सपेक्टिव्स आने लगते हैं. ठीक है, तो इस पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस और नॉट? थैंक यू. ठीक है, ये आईआर का क्वेश्चन है, इसको ज्योग्राफी वाले अपना समझ रहे होंगे. द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इसका ज्योग्राफी से क्या संबंध? चोक पॉइंट कहां दिख रहे हैं? शिफ्ट, ये यहां शिफ्ट हो रहा है क्योंकि यहां चोक पॉइंट्स हैं. The center of global trade is gradually shifting from Atlantic region to Indo-Pacific. इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए? If 19th century was European and if 20th century was American, fine. The 21st century is the Asian century. So the center of gravity of not just world trade, but world politics is also shifting towards Indo-Pacific. The reason is the simultaneous rise of more than one powers, and it is reflected in that US has also been emphasizing on its Pacific identity, and US has given, like, this concept was first given by Japan, but then it was embraced by USA, and it became one of the guiding principles in their national security and other documents, because this region is so important for US hegemony. And that is why what we see, first, US is withdrawing from NATO, from European security. The Mecca Pact, what does that reflect? Who are the countries in Mecca Pact? US allies. So US is outsourcing the security of West Asia. Why? Because it has to look here. So Mecca Pact is not as much a concern for India as it is a concern for China. Okay? So it's a, what is happening here? The power transitions are taking place, and this region is so critical for USA's hegemony. क्यों critical है? Global supply chains हैं, ठीक है, so many jobs in USA are dependent on here. तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर US का ally system है. तो US has made Quad, ठीक है, and since US find India's commitment weaker, they are floating the idea of a Squad with South Korea and other countries. ये सारा जितना पॉल साइंस पढ़ोगे उतना जीवन में अच्छाइयाँ रहेंगी. Is caste disappearing in urban India? No, because the voting pattern, ठीक है, caste is not disappearing, but caste is taking new forms. So secularization of caste is happening, according to Rajni Kothari. The caste is taking the form of jati, means caste as a homogeneous larger group is not so important, whereas more micro level caste is becoming important. So is caste disappearing? Then why are we talking about caste census? So caste is the very structure of Indian society. So how can structure change? We are interpellated with caste. It's not disappearing.
it is becoming stronger in certain areas. And if we talk about the political changes that have happened, even if BJP is in power, is it free from the phenomena of caste? No. Fine. तो caste disappear है ही नहीं. That forms the mosaic of Indian politics, says Christophe Jeffrelot. तो ये सारा चीजें यूज करना चाहिए. Challenges of demography के तो अब ये है, evaluate the impact of globalization. ये सब बिगड़े बच्चे हैं. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट. ठीक है. विद रेफरेंस टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन यूथ ऑन इकोनॉमिक स्फीयर क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट. बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू जॉबलेस ग्रोथ. ठीक है. इन पॉलिटिकल स्फीयर द राइजिंग प्रोटेस्ट्स, एंड इन कल्चरल स्फीयर बहुत सारा जो मेट्रोसेक्सुअल, मेट्रोपॉलिटन कल्चर, ये सारी चीजें आ रही. और फाइनली ग्लोबलाइजेशन को एडवांस कौन कर रहा है? आईसीटी. तो इमर्जेंस ऑफ व्हाट? मास सोसाइटीज. ठीक है. तो बस खुश रहो कि आपने बहुत समझ के लीप ऑफ फेथ इन पॉल साइंस रखा है. ठीक है. तो आधे से ज्यादा तो पॉल साइंस ही हो जाता है पेपर. क्यों टाइम वेस्ट करना है बाकी? और टाइम वेस्ट करके भी तुम आंसर तो लिख नहीं पाते.